Yeah. Okay, first question that I was interested in when I saw it, I personally found this particular question very fascinating because ना इसमें ना trick छुपा है. Once you get this particular trick, then that will be more than enough. Bindeshwari, front cam on kar. Observation from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted. Okay. So what we plotted, we basically plotted a graph between stopping potential and frequency. Then the slope of linear curve was found to be approximately 4.1 into 10 raised to minus 15. Okay. So slope अपने को कितना मिला? The slope that they have given us was 4.1 into 10 raised to minus 15 volt s. जो भी है. Given that charge of electron is 1.6 into 10 raised to minus 19, determine the value of Planck's constant. So they want us to find out h का value. Now you will think that ki sir ye to already we know na, why do we need to calculate h ka value? But the options will be like that only. They will give you value 6.63, 6.61, 6.56, okay, 6.58, something like that. So they want you to find out exact answer in this particular case that we are getting. किसका value? h का value. And graph किसके बीच में निकाला है उन्होंने? So they plotted the graph between stopping potential, that is V naught, and frequency, that is nu. Okay. Any idea how can I calculate this h ka value? Any idea? h by e. कैसे? क्या बोल रहा तूने? h by e फॉर्मूला था ना, क्या था याद ही नहीं आ रहा है. कौन सा तो थीटा था. स्लोप का फॉर्मूला नहीं क्या था? h by e. हाँ, tan थीटा, tan थीटा. h by tan theta वही. हाँ. If you remember, I told you one concept. याद है आइंस्टाइन ने ग्राफ को एक्सप्लेन किया था by the equation of line. ये थीटा आया था. बराबर याद आ रहा है ये? तो इस पर्टिकुलर चीज में हमें स्लोप का फॉर्मूला मिला था. That is h by e. So now you have everything with you. स्लोप का वैल्यू है 4.1 into 10 raised to minus 15. h is unknown. E का वैल्यू is 1.6 into 10 raised to minus 19. The only thing that you have to do is to take that 1.6 to the other side and we will get the value of h. Okay? Yes or no? Yeah. Yes, sir. Okay. टीशा प्रॉपर लाइटनिंग अरेंज कर. फिर से सोएगी नहीं तू. लेक्चर से बाहर निकाल दूंगा. लाइट लगा बड़ा वाला. Let's move on to the next question. Like मैं थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ. नहीं ये इजी नहीं है, टफ हो जाएगा. ये भी टफ हो जाएगा. ये भी टफ हो जाएगा. तो हर क्वेश्चन टफ है. I need to find out easy one. ना. Don't want to make things complicated. I want to make them easy. Okay. Let's try to. नहीं यार ये टफ हो जाएगा. सर एक बार दो तो सही कहते. ठीक है सर दो सर, अब ट्राई कर लेते हैं. This is the question. Photocurrent recorded in microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. Is there any voltage for which? Is there any voltage Cut for off which potential. current becomes zero या फिर current vanish होता है? कौन सा potential? Cut off Cut off. potential.
कट ऑफ। हाँ, तो ना ये इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट कट ऑफ पोटेंशियल ओनली। कैसे पता चला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिश हुआ Retarding. तो, और रिटार्डिंग भी बोला है, so that is nothing but your cutoff value. So first cutoff value or V naught that they have given is 0.8 volt. Then they are saying if the wavelength of incident radiation, no one is gonna answer this, huh? Only Zeneta is gonna answer this particular thing since she is very sleepy today. Zeneta, do tell me incident radiation ko which symbol should I use? Should I use lambda or should I use lambda naught? लैम्डा। Then where should I use lambda naught then? लैम्डा नॉट आई थिंक सो बिकॉज इंसिडेंट हाँ, लैम्डा आई गेस ओनली लैम्डा। then lambda naught किसको यूज करते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को सॉरी तो न्यू यूज करते हैं। न्यू किसको? न्यू सॉरी। शालू क्या यूज करेंगे इंसिडेंट रेडिएशन के वेवलेंथ को, लैम्बडा या फिर लैम्बडा नॉट? लैम्डा नॉट। वेरी गुड। पूर्णिमा, शालू ने जो बताया वो करेक्ट है कि नहीं, वो बता। Yes, sir. वेरी गुड। निकिता, साड़ी, इंसिडेंट वेवलेंथ को क्या यूज करते हैं, लैम्बडा कि लैम्बडा नॉट? क्या बोला? अभी बोला, अभी आवाज आ रहा है क्या? अरे ना, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चेतना, क्या यूज करते हैं इंसिडेंट वेवलेंथ को? क्या? Lambda not. लैम्बडा नॉट। वेरी गुड। मैक, व्हाट डू वी यूज फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ? Lambda not. ओके, सबके सब चुल्लू पर पानी में डूब मरो, मजाक नहीं। सर लैम्बडा है। हाँ, लैम्बडा। और दूसरे वाले के लिए Threshold लैम्बडा नॉट wavelength. यूज होता है। थ्रेशोल्ड के लिए wavelength. नॉट यूज होता है यस और सर। इंसिडेंट के लिए लैम्बडा यूज होता है। तो थ्रेशोल्ड अपने को फ्रीक्वेंसी में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। Threshold हाँ, wavelength. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ Threshold. होता है। जेनेटा, लैम्बडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यू वर क्लोज बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सो हाउ विल यू गेट इट? तो ये वी नॉट हो गया 0.8 एंड इंसिडेंट रेडिएशन मतलब आपको लैम्बडा दिया है, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना है? 4950 एंगस्ट्रॉम। ओके, इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट, हाँ वो हम लोग ने वी नॉट बोला तो आपने वैनिशेस का बताया, बट उधर पे वो रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल रहे हैं ना, तो वो भी लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं ना। बट हर रिटार्डिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं होता ना। लाइक -0.4 वोल्ट पे करंट जीरो किधर हो रहा है? जब वो 0.8 या उससे क्लोज क्रॉस करेगा 0.8 को, तब वो जीरो होगा। बिंदेश्वरी, कैमरा ऑन कर। हाउ एल्स यू विल टेल दिस पर्टिकुलर थिंग? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नो। मेरे को एक बात बता, जब तूने ग्राफ पढ़ा था तो ये ग्राफ पे हम लोगों ने ऐसे आके कुछ ऐसे एंड किया था, याद आ रहा है ये ग्राफ तुझे? ऐसा कुछ ग्राफ था बराबर। अब इस ग्राफ में ये वाला वैल्यू तेरा कट ऑफ है, वो बोल रहे 0.8 कट ऑफ है, तो 0.4 भी तो निगेटिव वोल्टेज ही है ना। तो 0.4 पे किधर तुझे करंट जीरो मिल रहा है? अभी भी नहीं समझा? 0.4 कंसीडर ही क्यों कर रहे हो?
तूने तो बोला कि रिटार्डिंग पोटेंशियल बोला है, उससे हिंट ले लो। रिटार्डिंग पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, बट दैट रिटार्डिंग पोटेंशियल वेयर करंट वैनिशेस इज कट ऑफ पोटेंशियल। तू बोल रहे रिटार्डिंग पोटेंशियल है इसीलिए उसको आपने वी नॉट लिया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 0.4 भी रिटार्डिंग है। अच्छा हाँ समझा। सूरज वीडियो क्यों ऑफ है? वैभवी वीडियो क्यों ऑफ है अभी? राज, सेजल, आज तेरा क्या चल रहा है तोंडवल सर का? वो मैं खाना खा रहा था सर इसलिए। सर तुमचा आवाज कट होतोय नुसता नुसता व्हिडिओ ऑन केला की. काय झालं तुझ्या इंटरनेटला? काय नाही. रूबी अभी आप घर पे आ गए होंगे ना? कैमरा ऑन करो। सूरज कैमरा ऑन होना चाहिए 1 मिनट में। तो आपको लैम्बडा क्या मिला? 4950 एंगस्ट्रॉम। इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज, दैट मीन्स अभी आपने क्या किया, पहले सोर्स अलग था, पहले बल्ब अलग था लाइट का, अभी आपने चेंज कर दिया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्न्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट। मतलब अगर पहले सोर्स के लिए, पहले बल्ब के लिए आपका वी नॉट का वैल्यू 0.8 था, देन व्हाट विल बी न्यू बल्ब के लिए? दैट वैल्यू इज गिवन एज V naught dash is given as 1.2 volt. They want us to find out work function and wavelength of the second source. Wavelength of the second source को चलो lambda dash बोलते हैं, but what is the symbol of work function रे? दिया, what is symbol of work function? मैं कैमरा ऑन कर, चालू कैमरा ऑन कर। What is symbol of work function? सर बोलू? पाए क्या सर पाई? एनर्जी है ना, एनर्जी है ना, सर वो एनर्जी ऐसा सर, बोल रहा एनर्जी एनर्जी है ना सर, मिनिमम एनर्जी हाँ ई हो जाएगा ना सर? Phi naught. Phi naught. काइनेट कोई भी यूज करेंगे हम Phi तो। naught. पाई नॉट इज द करेक्ट टर्म। पाई नॉट अपने को निकालना है और लैम्बडा डैश निकालना है। सो हाउ टू एक्चुअली यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, कैसे यूज करेंगे? एनी आइडिया? कोई इक्वेशन सिखाया था सर वो आइंस्टाइन वाला, का? वो y is equal to mx plus c वाला। ना, उससे कैसे वर्क होगा? उसमें लैम्बडा y शोधू इक्वल, शकता ना सर. नहीं मतलब ऐसा नहीं, वो वाला फॉर्मूला है ना सर, h by e into rho, हाँ सॉरी, म्यू माइनस क्या था वो, पाई नॉट by e। पाई नॉट है। हाँ तो इसमें क्या करेगा? तो इसमें तेरे पास वेवलेंथ न्यू है नहीं। हाँ मतलब बता रहा हूँ, सर तो नहीं पता इसमें ई से डिवाइड किए थे ना सर सब में। हाँ सर लैम्बडा डैश ढूंढ सकते हैं ना, कैसे? रिलेशन करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न्यू किधर पता है तेरे को? न्यू नहीं पता। ओके गाइस, व्हाट आई वांट यू टू सर वो वाला अंडरस्टैंड इज लगाओ ना, दैट, काइनेटिक वाला। very good, we can use kinetic energy wala formula which is equals to h nu minus phi. This is the most general formula. Now you need to modify Yes, this sir. particular equation, correct? अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करोगे? अपने पास न्यू नहीं है, करेक्ट, अपने पास लैम्बडा है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग h nu, hc by lambda। वेरी गुड, वी कुड यूज hc by lambda। रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा चेंज। नेक्स्ट थिंग, आपको अगर देखो तो डेटा कौन से टर्म्स में प्रेफरेबल लग रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में या फिर SI यूनिट में? क्योंकि अगर आपने SI यूनिट में डिसाइड किया तो प्रॉब्लम आपको खाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं ट्रायल दिखाता हूँ इस सम का। मैंने SI में भी सॉल्व किया है इसको, और अपन अभी शॉर्टकट मार के सॉल्व करने वाले।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी को आप ईवी के टर्म्स में भी लिख सकते हो. काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रॉन यस सर. वोल्ट. बराबर. hc बाय लैम्डा हुआ माइनस फाई नॉट हुआ. अभी ईवी नॉट में आप डायरेक्टली 0.8 सब्स्टिट्यूट करोगे. क्या करोगे? डायरेक्टली 0.8 सब्स्टिट्यूट करना है. डोंट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई. वैल्यू ऑफ ई तभी सब्स्टिट्यूट करना है जब भी चार्ज की बात हो, मतलब लाइक एसआई यूनिट की बात हो, तभी आप 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यूज करोगे. अदरवाइज यू विल यूज 0.8 ओनली. एचसी का वैल्यू याद है? नंबर क्या बोला था मैंने? 12,400 12,400. और जब 12,400 यूज करोगे तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ही यूज करोगे. सो यू आर गोना यूज 4950 minus phi naught is unknown. I hope it's okay. Okay ना? Yes sir. यस सर. बोलो ई का भी यूज करने का. कौन सा वाला? ई E का भी यूज का कर. जब तू H का वैल्यू 6.63, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, इसका वैल्यू मीटर, दैट इज सारे के सारे यूनिट जब SI में पुट करेगी, at that time you have to put E का value also. Okay guys, can you calculate pi naught from this equation? Easy calculation for you, don't you agree with me? Yes. Okay, अभी easy हो गया क्योंकि मैंने इसको easy किया. So you can calculate 0 0, then easy division हो जाएगा. You can calculate pi naught which comes out to be 1.7. Okay, once you got pi naught, now they want us to find out lambda dash, correct? तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप दूसरा सेम इक्वेशन यूज करो. सो के ई डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश माइनस पाई नॉट. तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा डैश. ये हो जाएगा वी नॉट डैश माइनस पाई नॉट. अभी ये ई वी नॉट आपको कितना दिया है? 1.2. सो यू आर गोना राइट 1.2. हाँ, एच सी का वैल्यू 12,400. लैम्बडा डैश अपने को फाइंड आउट करना है. एंड पाई नॉट you can use this one, that is 1.7. Now you will wonder, sir आपका pi naught क्यों नहीं change हुआ? Because pi naught depends on material. So long as material doesn't change, value of pi naught will not change. Getting it? क्या बोला मैंने? यस सर, समझा. सर सोर्स चेंज किया तो भी नहीं चेंज हुआ? नहीं, सोर्स से सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होगा. पाई नॉट चेंज नहीं होगा. मटेरियल पे ना सिर्फ. हाँ, पाई नॉट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, नथिंग एल्स. So can you show the question? ये नॉट कैसे चेंज हुआ फिर? वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड है ना. इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मटेरियल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. नाउ आर यू गेटिंग इट? हाँ. वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल. Is it done? Yes sir. Okay. Now, if you understood this particular logic, I want you to solve next question on your own. नहीं, ये नहीं जमेगा. अरे ये तो डी ब्रॉय के ऊपर है. मेज डी ब्रॉय वाले तो बाद में कर लेंगे, तो इजी है. एक पीवाईक्यू वाला ही क्वेश्चन कर देते हैं. आपके पास पीवाईक्यू है? सर ग्रुप में है ना? तो ग्रुप में. हाँ, बट कांदिवली वालों के पास बोलो. सर आप शेयर कर दो ना. वही कर रहा हूँ. अभी उसमें ना पीवाईक्यू में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं. इलेक्ट्रॉन एमिशन वाला पार्ट भी छोड़ देते हैं.
एज यू कैन सी ये क्वेश्चंस बहुत पुराने टाइम के हैं और लाइक रिसेंट ईयर्स में वो नहीं आते. ट्वेल्थ 11.4 का 12th यू आर अलाउड टू ओपन PDF. आपको सॉल्व करना है उसको. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी. मैं आपको जस्ट देखूंगा सॉल्व करके. Disha, you have to solve question. Sorry, sir, Papa. Sorry, I'll solve. So 2 minutes. सर एक डाउट था. इधर पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ईवी में दिया है. तो मतलब HC का वैल्यू 124000 लेना है कि SI यूनिट्स में लेना है? 12,400. सर आपने कांदिवली ग्रुप में डाले हो PDF? डाला है ना. नहीं आया. नहीं आया है सर. अरे यार किसी और बैच को चला गया. मैसेज इस पे करना है. मैसेज ये वाले अकाउंट को करके देखो. PTM को. हाँ PTM को करके देखो आता है कि नहीं. नहीं हो हाँ हाँ वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लेक्चर में टॉपिक छोड़ के बाकी की बातें बहुत ज्यादा कर रहे थे अननेसेसरी. ओके वैभवी. बस हो गया. इतना टाइम क्यों लगता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए. बाद में सॉल्व करते वक्त और मोबाइल ऑफ नहीं करने को बोला है मैंने. सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम मतलब कितना लेने का इसमें फिर आ जाएगा आंसर सर 1 ही मिनट में, लेकिन उसका डाउट हो रहा है. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम कितना लूं? 1.6 into 10⁻⁹. सर वही लूं ना, मतलब जो है. मेरे को मैसेज करके देखो अभी. सर आ रहा है आपको मैसेज.
हाँ बट इससे आप बाकी लोगों को भी सीक्रेट में मैसेज भेज सकते हो ना। I'll solve this for you. कौन सा था? 12th क्वेश्चन था ना। इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन sir. प्रोसेस, कैमरा ऑन करो फटाफट। इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस from a metal of work function 1.8 electron volt, the kinetic energy of most energetic electron is 0.5 electron volt. Okay, तो work function कितना दिया अपने को? phi naught, that is 1.8 eV. Kinetic energy कितना दिया है? 0.5 eV. Corresponding stopping potential they are asking. So V naught they are asking. Correct? Yes, sir. बहुत इजी है सर। हाँ सर Kinetic मिल गया energy is directly EV डायरेक्ट naught. आंसर है। हाँ तो that is मैंने बोला था ना सर कि मिल गया denote मत करो। 0.5 हाँ 0.5 तो 0.5 is the final answer. Like ये EV naught, ये EE कट होता है फिर। अरे एक्चुअली हाँ सर EV वही कैसे EV कट नॉट होता की वैल्यू डाल रहा हूँ सर, कब से वही दिमाग है? तो खराब हो रहा है। 0.5 EV is equals to EV naught, correct? तो फिर ये EE कट होता है and that is why we get V naught equals to 0.5 volt. कितना टाइम लगा रहे हो इतने इजी क्वेश्चंस के लिए? सर हाँ सर वो पाई नॉट इक्वल टू एच वी नॉट लेंगे तो? phi naught equals to H nu naught. हाँ V naught नहीं है बड़ी वो, बट न्यू नॉट है। न्यू डिफरेंट चीज है, फ्रीक्वेंसी है। अरे सर वही सर, हाँ सर सर मैं वो लिया सर। कोई बात नहीं। फिर उसको सी के फॉर्मूले में डाल दो, हो जाएगा। HC वाला ना। ये जरा क्वेश्चन देखो, 23rd वाला क्वेश्चन। 23rd थियरी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? 23rd। सर ए नंबर ऑफ इजैक्ट वो वाला ना सर? ए आएगा। नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज। सर ए आएगा ना सर? हाँ इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोन। हाँ सर। हाँ यस सर ए। ओके फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, 19th वाला क्वेश्चन। एक्सरेज। बी एस। ऑप्शन बी। यस सर एक्सरेज। सर एक्सरे आपने टंगस्टन वाला भी बताए थे। अरे वो टंगस्टन वाला तो ऐसे बता था, उसका इससे नहीं कनेक्शन है, बट वो आंसर बी होना चाहिए। क्यों बी होना चाहिए आंसर? कौन बताएगा? कैन एनीवन एलैबोरेट व्हाई बी शुड बी द आंसर? आपने कौन सा क्वेश्चन बोला था? मैं 2 मिनट के लिए हेडफोन निकाल दी थी। सर एक्सरेज इज मोर पावरफुल 19. देन यूवी रेज। यस करेक्ट। सी यूवी रेज से हो नहीं रहा है। ओके वो ऐसा सीन हो गया बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो यूवी रेज से स्ट्रॉन्गर कौन है? एक्स रेज। सो दैट इज व्हाई यू चूज एक्स रेज। यूवी रेज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फोटो एमिशन, but we need photo emission in any case. So which one will you prefer? X-rays. एक्सरेज। यस और सर। अगर एक्सरेज नहीं होता और गामा रेज होता तो कौन सा चूज करते? गामा रेज। गामा You have रेज। to choose, you have to choose strongest one. समझा? ऐसा है। यस सर। Okay. Next one. हाँ ये वाला करते हैं। 11.5 में आओ और 25 वाला देखो। अभी ये क्विकली नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा आपको। कौन सा सर? 11.5 में 20 वाला।
25. हाँ वही 25 वाला, सॉरी। नीट 2020 का है। एक हम लोगों ने वो डिब्रॉय का किया, याद है 2020 का 1.228 अपॉन स्क्वायर रूट वी किया था लास्ट लेक्चर। दैट वाज प्रेजेंट, मतलब वो भी 2020 का है और ये भी 2020 का। तो ऐसे दो क्वेश्चन आए थे, वो डिब्रॉय वाला एक आया था एंड ये एक आया। चलो सॉल्व करना है इसको। रिया, स्टार्ट सॉल्विंग इट। Light of frequency 1.5 times threshold frequency is incident on photosensitive material. तो लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करेक्ट रूबी? दिस इज व्हाट दे सेड। यस सर। लाइट का, ओके, लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric? क्या बोल रहे हैं आप? कर रहे हो? हाँ कर रहे हो ना, मैं हिंट दे रहा हूँ जस्ट उन लोगों के लिए जिनको नहीं आया। What will be the photoelectric current? तो मतलब करंट कितना होगा सर्किट में फ्लो हो रहा है वो, if उसका फ्रीक्वेंसी हाफ हो रहा है और इंटेंसिटी डबल हो रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो है ना, लेट्स से न्यू डैश, उसको ओल्ड फ्रीक्वेंसी का हाफ किया और इंटेंसिटी डैश इज 2 टाइम्स ओल्ड इंटेंसिटी। डबल बराबर ना? सर फिर से बोलो ना एक बार सर। मैंने क्या सर आ गया बोला? सर। न्यू कितना दिया है? 1.5 टाइम्स न्यू नॉट, दैट इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, वो पूछ रहे हैं कि करंट कितना फ्लो होगा अगर हमने फ्रीक्वेंसी को ओल्ड फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दिया एंड इंटेंसिटी क्या कर दिया? 2 टाइम्स ओल्ड इंटेंसिटी। करंट निकालना है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया और इंटेंसिटी चेंज किया तो क्या फर्क होगा? दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। I got 2 answers from Raj and Avnish. सर इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा सर? क्यों, ऐसा क्यों लगता है तेरे को इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा? सर क्योंकि V नॉट से सुन, पहली बात तो ये तेरे दिमाग में आना चाहिए था ना, शायद आया भी होगा कि इंटेंसिटी डबल हो रहा है। इंटेंसिटी डबल हो रहा है तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो अगर हाँ सर ये भी हाँ, आया तो था सर ये। इंटेंसिटी डबल हो गया तो करंट भी डबल होना चाहिए। सर वहाँ पे हाफ भी तो है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का तूने क्या कनेक्शन लगाया बता अभी? तो बैलेंस हो गया ना फिर 0 1। अरे कैसे, ऐसा कैसे करेंगे सर? सर और ये नहीं डबल सर, हुआ जब उसको सॉल्व करेंगे ना सर तो V नॉट से भी छोटा म्यू आएगा। नॉट की जगह सर लिखेंगे 1.5 म्यू नॉट अपॉन 2। जब उसको करेंगे तो आंसर सर 0 पॉइंट कुछ आएगा। हाफ हो जाएगा सर। Okay, I'll try to solve this particular thing for you guys. sir. Okay, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डाउट आपके दिमाग में कैसे आना चाहिए कि इंटेंसिटी डबल हो रहा है तो करंट डबल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड थिंक अबाउट फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो एंड अंडरस्टैंड करो। यहाँ से अगर मैंने समझो न्यू नॉट निकालने की कोशिश की, डोंट यू एग्री इट विल बी लाइक दिस? रुको एक मिनट, न्यू 1.5 क्या होता है? 3/2। हाँ सर। ओके, तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा रे? 2/3 न्यू। 2/3 आई गेस 0.66 होता है ना कुछ तो। यस सर।